वेलकम टू डेली सर फर्स्ट ऑफ ऑल देन लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यू लाइक हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे कितनी बड़ी हस्ती हमारे सामने बैठी है। बड़ी I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦਾ ਪਾਵੇ ਪੈਰ ਸਿੱਚ ਲੀੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ But I always had this thing in the back of my mind, we अपना कुछ करना है, right? We all do, right? We all do have that feeling. Huge gap in the market where people don't even know about what soya chap is. हम जो चीज़ें सर्व कर रहे हैं वो अभी यहाँ भी जो 15 साल से चाय बेच रहे हैं वो उनके पास भी नहीं है. कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? सेंट्रल किचन शुरू करने में अपने को तो लग जाता है पूरा. मैंने ये भी सुना था अपने 2 स्टोर्स बंद करे थे अपने। अभी तक ये चीज़ मैं सुन रहा था लाइक दे वर सेइंग कि शार्क टैंक में इस रीज़न की वजह से काफ़ी सारी डील्स क्लोज नहीं हुई। कहना था कि आधी चीज़ें ड्यू डिलिजेंस नहीं होती, वो जानबूझ के चीज़ ऐसे डाल देते हैं कि वो डील होती। But I think the passion to do something on our own and create our own brand was far bigger than a fixed paycheck. So hello everyone, welcome to the very first episode of Brew to Billions Season 3. This is a place where you'll get real world insights from the people जिन्होंने सच में बिजनेस बनाया। हम अब थ्योरी तक नहीं रहेंगे, अब हम रियल वर्ल्ड के इंसाइट्स लेंगे उन्हीं लोगों से जिन्होंने बिजनेस बनाया है। वेलकम टू डेली सर फर्स्ट ऑफ ऑल देन लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यू लाइक हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे कितनी बड़ी हस्ती हमारे सामने बैठी है। बड़ी I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦਾ ਪਾਵੇ ਪੈਰ ਸਿੱਚ ਲੀੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਦਰਾ ਰੱਖਦਾ I'm a motherfucking ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਡਾਲਰ ਅੱਜ ਛਾਪ ਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ मेरा नाम तरुणप्रीत सिंह है. I am the co-founder for Gabru Di Chap. We call it the India's first asli soya chap brand, and belong to Hyderabad. Been there for almost 20 years now. Settled there. We started my brand there only. Or been a HR guy all along. Have quite a bit of corporate experience in HR. Before I started my own brand, and now we are trying to scale it across India. नाइस सर। बस स्टार्टिंग की एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, लाइफ जर्नी आपकी स्टार्टिंग से स्पेसिफिक। So शुरुआती दिन लखनऊ में थे। वहीं से मैंने कॉलेज किया, अपना स्कूल कॉलेज लखनऊ से किया है। और उसके बाद फिर फॉर फर्दर स्टडीज़ आई मूव्ड आउट ऑफ लखनऊ। मेरी फैमिली आज भी लखनऊ में ही रहती है, माय पेरेंट्स। और फिर उसके बाद MBA किया मैंने XLRI जमशेदपुर से बैक इन 2005, एंड देन आई मूव टू हैदराबाद फॉर माय फर्स्ट जॉब। और उसके बाद से फिर हैदराबाद में हूँ। आई वर्क विद मल्टीपल कंपनीज लाइक Genpact, IBM, Deloitte before I started my own business. Yes. ओके, तो सर ये शिफ्ट का आइडिया आपको कहाँ से आया? लाइक काफ़ी हाई पेइंग जॉब से आपको गबरू दी चाप का आइडिया कहाँ से आया? यार of course after working for so many years in the industry, you get a little bored. Bored of यार you're doing same thing in and day out. Although I used to like my job, I used to love the companies I worked with, but I always had this thing in the back of my mind कि अपना कुछ करना है, right? We all do, right? We all do have that feeling. So when the opportunity came, so I was still a little risk averse, right? Maybe in hindsight I shouldn't have, but I was. So what I did was, while doing my job, I started this as a passion project. साइड बाय साइड एक साइड पैशन प्रोजेक्ट है कि चलो ट्राई करते हैं। एंड जब वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा हमें, that's when we started expanding, and that's when both me and my co-founder, both of us came in full time. So yes, that was of course my job was there, and there was a
fixed salary that we used to get. Both of us, not just me, my partner also, and Randhir sir, like Randhir. So both of us, were in good stable jobs. But I think the passion to do something on our own and create our own brand was far bigger than a fixed paycheck. तो ये and I think we believe in ourselves. हम लोगों को लगा कि नहीं करते हैं, and it's not just a salary game. Sometimes you need to look at building your net worth also, right? लेकिन सर लाइक बिजनेस तो आप लोग जैसे आप i1 डॉलर जैसे कंपनीज में तो कुछ आप ऐसा बिजनेस भी कर सकते थे, बट ये एकदम से HR से निकलकर चाह वाला बिजनेस. I agree. I mean, yeah, of course. So और उसमें भी एक और कॉम्प्लिकेशन, लाइक चाह भी स्टार्ट करना इन हैदराबाद. हाँ. So नॉर्थ इंडिया का फूड लाइक साउथ इंडिया में हाँ. So दोनों एक let me take it one by one. तो पहली बात तो why restaurant business? Why right? restaurant business, right. तो जब हमने इनफैक्ट आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग ऑन माय ओन. मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ. टू बी ऑनेस्ट, मैंने इससे पहले भी एक स्टार्टअप किया था. दैट वाज अ टेक स्टार्टअप व्हिच वाज बैक इन 2014, व्हिच डिडंट रियली फ्लाई. तो ऐसा नहीं था कि मैं HR में हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड ही कुछ करना है. अच्छा. तो वो कुछ नहीं, उसका इतना आई कुडंट रियली मेक इट वर्क. So this was my second startup, and again it was more on the opportunity. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट में इतना दम है कि it should not just stay in Delhi or Punjab. It should go out. It should go to the rest of the India, and everybody should enjoy it. Exactly. So वो belief से किया था. और आज भी वही belief है कि अभी भी there is a huge gap in the market where people don't even know about what soya chap is. Its taste, its benefits, people don't know. एंड स्टार्ट करने के बारे में आपने बताया था रणधीर सर पंजाब से शेफ ले आए थे. हाँ. So उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. तो अब जब हमने स्टार्ट किया तो लाइक वेरी एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स, हम लोग ऐसे ही नहीं जाना चाहते थे उसमें. वी वांटेड टू डू आवर ओन डिलिजेंस. हमने कोशिश की कि पहले हम बहुत सारा रिसर्च करें, कि मार्केट की रिसर्च करें, देखें कि प्रोडक्ट वेदर इट विल वर्क इन अ मार्केट लाइक हैदराबाद और नॉट. तो हमने क्या किया, वी थॉट लेट्स गेट अ शेफ हियर. Okay. Let's do a lot of trials. Let's get feedback from a lot of people before we decide whether we really want to do it as a business or not. क्योंकि हम लोग jobs में थे ही, तो it was a parallel thing that we were doing. तो फिर Randhir actually went to Punjab, and we found a chef who was willing to come to Hyderabad, and he was a very good soya chap chef. हम उसको लेके आए हैदराबाद. वी मेड हिज स्टे अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग. और आई एक्चुअली पुट अ फुल फ्लेजेड कोल तंदूर इन माई बैल्कनी इन द अपार्टमेंट आई यूज्ड टू स्टे इन. और हम लोग रोज़ उसको बुलाते थे शाम को, रोज़ आके वो कुछ नया रेसिपी कुक करता था. वी यूज्ड टू इनवाइट आवर फ्रेंड्स, फैमिली, पीपल, एंड दे ट्रायल करते थे, फीडबैक करते थे. और दिस वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 months. And by the end of it, we were very convinced that everybody is liking the product. And we were also, through those trials and through those feedback, हमने ये भी we actually zeroed on a few recipes also. These are the menu items that we would want to start with. So आपने कुछ रेसिपी वगैरह कुछ अपनी भी इनोवेट करी थी? और Yes. उस टाइम नहीं की थी. उस टाइम तो we were just going by what the chef was making, because the product itself was very new in Hyderabad. तो वहाँ इनोवेशन की इतनी जरूरत ही नहीं थी. वो अपने आप में इनोवेशन था, राइट. अगर मैं दिल्ली में स्टार्ट कर रहा था तो मैं सोचता कि यार कुछ इनोवेशन करूंगा, बट हैदराबाद में तो बहुत ही बिल्कुल नई चीज थी. Later on we did a lot of innovation in our menu, of course, and that is something that we take a lot of pride in. आज भी मुझे लगता है कि अभी हम दिल्ली में हमने इस साल लॉन्च किया है अपने स्टोर्स, एंड हम जो चीज़ें सर्व कर रहे हैं वो अभी यहाँ भी जो 15 साल से चाप बेच रहे हैं वो उनके पास भी नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक 2019 में आपने स्टार्ट किया था, एंड उसके बाद ही कोविड आ गया था. सो उस टाइम पे आपकी क्या थिंकिंग थी लाइक? और उस टाइम पे आपने, मैंने देखा कि यू आर बूटस्ट्रैप्ड ओनली, और आपने फंडिंग भी नहीं ली कहाँ से, तो कैसे मैनेज किया? तो उस टाइम बस यही थिंकिंग की, वी आर वेरी ग्लैड कि हमने जॉब नहीं छोड़ी हुई थी अपनी. उस टाइम जॉब में थे आप? हाँ, उस टाइम हम लोग जॉब में थे, थैंकफुली. क्योंकि जब कोविड आया था हम लोग के, तब शायद
2 या 3 आउटलेट थे हैदराबाद में। एक या 2 कंपनी ओन थे और 1-2 फ्रेंचाइजी ओन थे, ऐसा कुछ था। और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, नॉट for just for us, for the entire For the whole world. hospitality industry specifically was quite badly hit. और लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे यूजुअली उस टाइम 1-2 मॉल स्टोर्स थे, और उन दोनों स्टोर्स में हम लोग को काफी सपोर्ट मिला मॉल का। अच्छा, they did not they waived off the rentals. They wanted us to stay. उनको था कि हाँ कोई बात नहीं है, जब हो जाएगा तो these guys will be, क्योंकि they didn't want us to leave the mall. तो और ऐसे भी 1-2 स्टोर बंद भी हुए हमारे, जहाँ पे लैंडलॉर्ड ने रेंट वेव ऑफ नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम ऐसा था कि हमें नहीं पता था ना कि 2 महीने चलेगा कोविड या 3 महीने चलेगा, उस टाइम तो किसी को नहीं पता था। तो हम वी कुड नॉट जस्ट हैव केप्ट ऑन पेइंग रेंट। तो हम 1-2 स्टोर्स बंद करने पड़े जहाँ वेवर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 6 महीना साल भी चलेगा तो हमारे स्टोर्स तो बंद रह जाएंगे। तो वो वेरी डिफिकल्ट टाइम, वेरी अनसर्टेन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और लेकिन एज आई सेड वी वर ग्लैड कि हमारी जॉब थी, तो एटलीस्ट हम लोग का एक इनकम थी। तो फिर जब जॉब आपने कौन सी ईयर में छोड़ी थी देन? जॉब तो हम लोग आई केम इन 2023 इन फुल टाइम। यस, एंड रणधीर सर ही आल्सो केम इन दैट ईयर 2023 तक, मतलब 4 इयर्स आपने पैरेलली चलाया उसके साथ। दैट्स नाइस। तो हुआ ये था उस टाइम कोविड में भी पूरा पहले तो फुल लॉकडाउन था, उसके बाद पार्शियल लॉकडाउन हो गया, तो एटलीस्ट वी कुड स्टार्ट ऑनलाइन सेल्स। तो एटलीस्ट हमने उसको ना क्लाउड किचन की तरह अपने जो स्टोर्स को चला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल वर नॉट कमिंग इनटू द स्टोर्स। एग्रीगेटर्स ने काफी हेल्प करी होगी। हाँ, तो वो सब चल रहा था, तो दैट हेल्प्ड सस्टेन आवर बिजनेस। एटलीस्ट वी वर एबल टू पे द सैलरीज ऑफ आवर स्टाफ। मेरे स्टाफ ने नहीं छोड़ा, और मैं स्टाफ की सैलरीज भी पे उस टाइम बिल्कुल हमने कोशिश की थी। बहुत कम स्टाफ था, तो वी थॉट वी विल पे देम। सो लाइक आप थोड़ा सा एक्सपेंशन बताओगे, लाइक कैसे रहा गब्बू का? लाइक अभी आपने बताया दिल्ली में आपने स्टोर्स ओपन किया। हाँ, तो शुरू में तो हमने हैदराबाद में ही थे हम लोग। कोविड में 1.5-2 साल तो चला गया, वी डिड नॉट expand much. 2022 was the year where we really started expanding. 2022 में हमने हैदराबाद में और स्टोर्स किए। By the time 2023 came, we were very confident कि हमारी एक टेम्पलेट बन चुकी है, SOPs बहुत डिफाइंड हैं, this is something that we can replicate in other cities also. तो in 2023 we started our first store in Bangalore, which was the second city that we moved in. 2023 में। Okay. और अगेन 2023 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला बैंगलोर में, और फिर 4 स्टोर्स हमने ओपन किए। 24 में वी मूव टू अहमदाबाद, वी मूव टू लखनऊ, और एंड देन शार्क टैंक हैपेंड 2024। शार्क टैंक के बाद कितना इम्पैक्ट आया लाइक बिजनेस पे? उसके बाद से ह्यूज इम्पैक्ट। वी गॉट वेरी गुड एक्सपोजर, not just in India but internationally. 1.5x 2x like something. एक्सपोजर को तो बहुत मुश्किल है मेजर करना। रेवेन्यूज यार, आई डोंट थिंक इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर यू गेट। क्योंकि देखो अभी अब जैसे दिल्ली में मेरा बहुत एक्सपोजर हो गया था अचानक से, एवरीबडी गॉट, लेकिन मेरा कोई स्टोर नहीं था दिल्ली में, तो वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना वो एक्सपोजर। मेरे तो सेल्स तो जहाँ पर मैं स्टोर है वहीं पूरा टाइम लगता है, तो इट्स नॉट अ D2C ब्रांड ना कि ऑनलाइन भेजना है मुझे तो इंडिया में जहाँ से ऑर्डर आ रहा है मैं भेज दूंगा, राइट? यू हैव टू हैव प्रेजेंस इन दैट सिटी, बट अदरवाइज द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द मार्केटिंग दैट वी गॉट एज अ ब्रांड, दैट वाज ट्रेमेंडस। आई मीन आपको वैसे कहीं मिलेगी नहीं, तो वो बहुत अच्छा हुआ हमारा। उसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल गॉट टू नो, वी यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। बट अगेन अक्रॉस द वर्ल्ड कौन सी कंट्री से लाइक बाहर है? मतलब जहाँ इंडियंस हैं और हर जगह हैं तो US, UK, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू नेम इट, हमें हर जगह से आज भी आती है फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट। बट लेकिन हमारा अभी वी आर एक्सपैंडिंग इन आवर ओन पेस स्लोली। वी वांट टू इंश्योर दैट हम जो भी सिटी में जाते हैं पहले हमारा एक किचन हो वहाँ पे, वी कंट्रोल द एंटायर क्वालिटी एंड रेसिपी, राइट? सो एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट गोज व्हेन यू ओपन अ किचन ऑफ योर ओन। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है किचन? सेंट्रल किचन शुरू करने में अपने को 15-20 लाख रुपए तो लग जाते हैं पूरा एवरीथिंग सेटअप करने में अच्छे से। फिर उसके बाद स्टोर्स ओपन करते हैं हम, चाहे वो कंपनी ओन्ड हो चाहे वो फ्रेंचाइजी ओन्ड हो।
बट वी वर्क ऑन अ फोको मॉडल. तो स्टोर किसी का भी इन्वेस्टमेंट हो, द स्टोर ऑपरेशंस वुड बी रन बाय द कंपनी इटसेल्फ. तो मतलब हम ही करेंगे. तो you have to build a strong team in that city also. So when you go from one city to the other city, you have to ensure that the city that you are in first, the operations get stabilized, right? Team is set, everything is happening in a smooth way. Then you do go to another city. Because if you start 10 cities at one time, then it will be very difficult to maintain the quality, or to ensure that the teams are in USP place. is and only the everything. quality and Exactly, so right. I आप mean, उसको- if you want to grow, you have to grow in a very sustainable manner. That's what we believe. मैंने ये भी सुना था आपने 2 स्टोर्स बंद करे थे अपने हाँ. SOP की वजह से. So, आप बिल्कुल बंद किए थे हमने. कहाँ पे थे वो ये stores? दोनों हैदराबाद में थे. दोनों हैदराबाद. हाँ. This is again दोनों फोफो स्टोर थे. Initially we used to do सर, फोफो sorry to model. interrupt you, आप थोड़ा सा बताएंगे मॉडल्स लाइक कोको एंड फोको मॉडल्स लाइक व्यूअर्स को हमारे पता Right. लगे. So FOFO means franchisee owned, franchisee operated, Okay. which means कि और बहुत सारे ब्रांड्स इस मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट्स द केपेक्स, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्रेंचाइजी का होता है, और उसके बाद जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं स्टोर के, वो भी फ्रेंचाइजी मैनेज करता है. कंपनी का हेल्प करता है उसको. हाँ, कंपनी एसओपी दे देता है, कंपनी स्टाफ भी दे देता है, अपना ब्रांड दे देते हैं, अपना मेन्यू दे देते हैं, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस है वो फ्रेंचाइजी रन करता है. ओके. राइट. जो डे टू डे एक्सपेंस है, रेंट देना है, सैलरीज देना है, everything is done by franchisee. Company is just like helping them Just to brand run the दे दिया, business. you are selling एक a brand, टेम्पलेट दे दिया. और बाकी आप लोग हाँ, तो वो होता है फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, FOF. ओके. FOF. Then फिर एक होता है कोको, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड. ओके. जो मेरा खुद का स्टोर है, मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं ही अपने प्रोसेस कर रहा हूँ, वैसा आपकी सारी इन्वेस्टमेंट है, स्टाफ वगैरह सब कुछ everything मेरा है, आपकी. सब कुछ मेरा एज अ कंपनी. ठीक है. फिर होता है कंपनी ओन, सॉरी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फोको मॉडल, ठीक. या फिर इसको फीको भी बोलते हैं, फ्रेंचाइजी इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड. राइट. उसमें क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी का है, ठीक है. लेकिन स्टोर को जो डे टू डे ऑपरेशंस जो रन करने हैं एंड टू एंड, वो कंपनी करती है. एंड प्रॉफिट्स वगैरह कौन फ्रेंचाइज लेता है? तो इसमें क्या होता है कि द ओनरशिप स्टेज विद फ्रेंचाइजी. ओके. राइट. ऑल द एसेट्स आर ओन्ड बाय फ्रेंचाइजी. द P&L इज ऑल्सो ओन्ड बाय फ्रेंचाइजी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो भी फ्रेंचाइजी का, लॉस होगा वो भी फ्रेंचाइजी का. It's the model is like they have outsourced the business to the company, outsourced their outlet to the company to run the operations. अच्छा. सो वैसा है. देन कंपनी को क्या मिलता है, वो क्या स्टेक? We charge a management fee ओके. to run the operations for them, which is a certain percentage of the sales, ओके. right, that we charge. But इसमें दो बहुत बड़े बेनिफिट हैं फॉर अ फ्रेंचाइजी. राइट. मैं बताऊंगा दोनों को क्या बेनिफिट होता है ठीक इससे. है. फ्रेंचाइजी को बेनिफिट होता है कि एक तो उनको they don't have to go through that entire hassle of running a food business is Operations of course का very काफी ज़्यादा operations intensive. staff management है, stock management है रोज का, lot of things that happen, right. तो उनको usually जो मेरे फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है. they have their own business, they have their own jobs, they don't have time to run the they just store invest it और फिर वो 24/7. बैठते हैं कि तो वो हम बस इन्वेस्ट करते हैं. तो एक तो उनको बहुत बड़ा ये बेनिफिट है, उनको कुछ करना नहीं है. क्योंकि अगर फोफो में भी देखो आप, वो पूरा रन भी करते हैं और वो रॉयल्टी भी देते हैं. अच्छा, रॉयल्टी भी देते हैं. रॉयल्टी तो देते हैं ना, अदरवाइज नहीं तो क्यों ही कोई ब्रांड उनके साथ काम करेगा. राइट. तो रॉयल्टी भी देते हैं. तो अब हम रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं, हम फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं, तो सॉरी मैनेजमेंट फी ले रहे हैं. सो प्रोपोर्शन कम होता होगा ऑफ कोर्स, आई गेस. और बराबर भी होता है ऑलमोस्ट, बराबर ही होता बट आप ये सोचो ना कि Hectic सेम नहीं है. बिल्कुल नहीं है उनका, बिल्कुल दे सेव ऑल दैट. ओके. राइट. तो वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज है फॉर अ फ्रेंचाइजी. सो और फोफो में भी प्रॉफिट लॉस उनका है, फोको में भी प्रॉफिट लॉस उनका है. राइट. वहां भी रॉयल्टी दे रहे हैं, यहाँ भी मैनेजमेंट फी दे रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट दे डोंट हैव, सी दैट्स अ बिग थिंग, राइट. You are absolutely free to do anything else. इन्वेस्टमेंट डाल के कर सकते हैं, देन दे कैन कंटिन्यू दैट बिजनेस और जॉब. Right. For a company, the biggest benefit of this model is कि I have control over operations, so I can ensure that franchisee, if that person is running the operations, उसमें क्या होता है कि they can look at short-term gains. And they can do things that can dilute the brand.
जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक एसओपी ऐसे फॉलो करना है और वही चीज, ये इंग्रेडिएंट्स यूज करना है तो यही इंग्रेडिएंट्स Implementation भी fast लोअर quick क्वालिटी हो जाता इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज होने चाहिए, हम्म राइट। हमारी रेसिपी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो है फोको Better में control कई हो बार जाता है डाइल्यूट हो जाती है, फोको में मैं वो सब चीज़ें कंट्रोल करता हूँ। हाँ सही बात है। सो आई कैन गिव अ सेम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड टेस्ट to customers across my stores. It does it for a customer should not matter कि franchisee owned है या company owned है। सो हैदराबाद वाले स्टोर्स आपके दे वर फोको और पहले फोफो थे, फोफो थे हाँ, अब धीरे धीरे हमने नहीं जो सारे बंद हुए लाइक वो दोनों फोफो थे, वो दोनों फोफो same because of the SOPs were not being followed. So we used to do audits, right? My team used to do audits कि SOP follow हो रहा है कि नहीं, proper hygiene है कि नहीं स्टोर में, right ingredients are being used or not, right? So all those things, and और उसमें क्या हो रहा था कि they were failing audits, and despite of multiple warnings nothing happened, and that's where we had to send a legal notice, ओके and we got those stores closed. हाँ, सो सर अभी कितने स्टोर्स हैं लाइक अभी इंडिया में एट प्रेजेंट अभी मेरे 35 stores हैं। ओके एंड सिटीज नंबर We have opened in 9 cities now. 9 So Congratulations. thank you. So my latest city was Pune. पुणे We started last month in Pune. ओके और and you can name the 9 cities please so Hyderabad, okay Bangalore, Ahmedabad, Lucknow, Delhi NCR, Mumbai, Indore, Surat and Pune. and Pune 9 okay so सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपको कहाँ लगती है कि पूरे इन सभी स्टोर्स में से See, profitability comes after a certain time. अभी जितने नए सिटीज हैं जहाँ मैंने दो तीन महीने पहले स्टार्ट किया है, तो वहाँ तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर। मैंने बोला ना हमारा सेंट्रल किचन मॉडल है, सो एवरी सिटी दैट वी गो इन वी फर्स्ट एस्टैब्लिश अ सेंट्रल किचन। सेंट्रल किचन के बारे में आप थोड़ा सा हाँ, सो सेंट्रल किचन क्या होता है, इट्स अ हब एंड स्पोक मॉडल जिसे बोलते हैं। एक आपका किचन रहता है सिटी में, ठीक है एवरीथिंग गेट्स प्रिपेयर्ड एट द सेंट्रल किचन ठीक एंड गोज टू द स्टोर्स। सो जैसे एक साइकिल का आपने देखा होगा ना, एक साइकिल कैसा होता है, एक हब होता है, स्पोक्स निकले होते हैं साइकिल में, राइट। तो वैसे वो मॉडल रहता है जिसमें हमारे किचन में सब कुछ प्रिपेयर होगा और रोज स्टोर्स पे जाएगा फ्रेश स्टॉक। अच्छा राइट। तो जैसे चाप है तो मैरिनेटेड चाप जाएगी, किचन से पूरा मैरिनेट हो जाएगा, स्टोर पे जाएगा, स्टोर पे हम उसको सिर्फ तंदूर में रोस्ट करके सर्व करेंगे, सर्व करते हैं। तो उसके लिए देखिए बेनिफिट क्या होता है कि एट एवरी स्टोर यू डोंट नीड टू हायर वेरी हाईली स्किलफुल शेफ्स, क्योंकि उनको बस लास्ट माइल ऑपरेशन ही तो करना है। उनको या तो सिर्फ कुछ रोस्ट करना है, हीट करना है, दे आर नॉट रियली कुक्स एंड दे डोंट रियली कुक एनीथिंग। तो सब कुछ सेंट्रल किचन में हो रहा है, तो आप सैलरी कॉस्ट सेव करते हो अक्रॉस, राइट। आप अनट्रेन्ड वर्कर्स भी रख सकते हैं उसके। हाँ, आपको जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही बिल्कुल ही सेमी स्किल्ड लोग चाहिए। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए स्टॉक करने के लिए चीजें, क्योंकि आप कुछ रॉ मटेरियल तो स्टॉक कर ही नहीं रहे हो। सो रेंटल कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाती है थोड़ी सी आपको जो छोटी जगह में। सो QSR मॉडल में आपको बहुत ज्यादा स्पेस एफिशिएंसी चाहिए होती है। सो दैट्स वेयर तो आपको छोटे से छोटे जगह में ज्यादा बिजनेस करना है विद नॉट वेरी हाईली स्किल्ड स्टाफ। सो दैट्स वेयर यू रिड्यूस योर कॉस्ट्स, राइट, एंड यू बिकम प्रॉफिटेबल। तो सर एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे आप अभी दिल्ली में आए हो, नॉर्थ इंडिया में आए हो, है ना, तो यहाँ पे क्या रहता है कि हर किसी का कि अच्छा मैं तो उसी दुकान से चाप खाऊँ, क्योंकि यहाँ पे चाप एक लोकली अवेलेबल है। तो हर किसी का क्वेश्चन है कि यार देख भाई मैं तो अपने भैया वाले चाप से खाऊंगा, मैं तो 5 साल से वहीं से खा रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल कर रहे हो यहाँ पे? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ रही होगी उस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। लोग पहले सब रोड साइड मोमोज खाते थे। Wow Momos came and created a brand, right? And they become a huge brand. छोले भटूरे हर जगह दिल्ली में मिलते हैं, but हल्दीराम still created a great brand, right? तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि there is a taker for everything, right? लोग स्ट्रीट साइड भी खाना पसंद करेंगे, लोग ब्रांडेड आउटलेट में भी जाना पसंद करेंगे। अच्छा, उनको ये भी समझ में आता है कि डिफरेंस है दोनों में। उनको ये भी समझ में आता है कि प्राइस पॉइंट भी अलग है दोनों में, क्वालिटी भी अलग है, लेकिन वो दोनों ट्राई करते हैं। तो विलिंगनेस टू दोनों की मार्केट है, दिख रही है मतलब यहाँ पे है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सी, इंडिया इज अ वेरी ग्रोइंग कंट्री, तो एंड पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस
on what they're eating, what they're spending on, right? So and people खाना छोड़ भी दो आप, वैसे भी बहुत एस्पिरेशनल है. दे वांट टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, दे वांट टू वेयर ब्रांडेड वॉचेस, नई चीज ट्राई करनी नई चीज ट्राई करनी. एक्सपेरिमेंटल है लोग. Experimental तो कि जब ये मुझे नया लगता है खुला जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो लोग ज्यादा कंजम्पशन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंटल एसेंशियल चीजों से ज्यादा हटके थोड़ा नई सा चीजें ट्राई नई करते चीज हैं. ट्राई करना है. तो क्यों नहीं है. तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वी विल डू वेरी वेल इवन इन अ मार्केट लाइक दिल्ली, बिकॉज हमारी मार्केट पोजिशनिंग भी काफ़ी डिफरेंट है. तो अगर आप देखोगे ट्रेडिशनली यहाँ पे जो चाप बिक रही है तो कभी किसी ने उसकी प्रोटीन कंटेंट पे फोकस नहीं किया है. दे आर ऑल लाइक टेस्टी. आपका टेस्ट अच्छा है, बस उतना ही. इस पे बस, उससे ज्यादा नहीं आगे राइट. जाते. सो टेस्ट डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो और आप बाहर खा रहे हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि आपको टेस्ट चाहिए. टेस्ट चाहिए, राइट. हाँ. दैट इज वेरी वेरी कभी इंपॉर्टेंट. कभी तो खा रहे हैं, इसमें भी हम ये लेकिन अगर टेस्ट के साथ आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है हाँ. तो व्हाई नॉट. people will not mind spending maybe 10% more, right, for the same taste if you are getting better quality. और इंडिया में भी हेल्थ कॉन्शियसनेस भी बहुत बढ़ रही है. लाइक अगर हम देखें बहुत जिम बढ़ रही चेन्स है. वगैरह बहुत अच्छा ग्रो कर रही है. बिल्कुल. तो उसमें भी चल सकते बिल्कुल. हैं. आई वाज सीइंग लाइक वाओ मोमो के जो फाउंडर थे उनका एक आइडिया था. दे वर सेइंग कि हमारा जो हेल्दी वाला मोमो है हम उसको क्या करेंगे, जिम के साथ साथ लॉन्च करेंगे. सो कोलैब कर सकते हैं. आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो? लाइक हमने अभी तक कुछ किया नहीं है कोलैब ऐसा, बट व्हाई नॉट. आई मीन इट्स अ गुड थिंग. आई मीन और बहुत सारे मैं जानता हूँ मेरे कस्टमर्स है जो जिम गोइंग है एंड दे लव ईटिंग, गोइंग बैक एंड ईटिंग माय चाप. आप कितने टाइम बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यस नाउ वी कैन प्लान? Maybe 2 to 3 years. 2-3 years आफ्टर. अभी आपके रेवेन्यू स्टार्ट्स क्या है? लाइक अभी रेवेन्यू स्टार्ट्स क्या है? रेवेन्यू एंड ऑल. see we are at around close to 20 CR Okay, that's ARR. nice. Revenue start per annum. And ratios वगैरह like margins and all. So as we mentioned in Shark Tank also, last financial year we made a net profit of 7%. Okay. So this year will be Margins. something closer, something lower I think, because this has been a growth year. So from 4 cities we grew to 9 in investments this one काफी year. होंगे Yeah, starting so there's been a lot of investment that has gone into it. So hopefully we will break even this year, but that's Okay. about it. Yes. It's nice. So Shark Tank की आपने बात करी तो चलिए Shark Tank में आप गए थे. So क्या एक्सपीरियंस रहा था, कैसा रहा था आपका सारा कुछ? Oh, that's an experience of a lifetime. Man. I mean, we were very fortunate to have that kind of an experience. Overwhelming था. Okay. क्योंकि अब हमें आदत नहीं थी कैमरास के सामने जाके और ऐसे बात करने की, कभी किया नहीं था हमने. हाँ. तो बहुत ओवरवेलमिंग था, बट आई थिंक वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. आफ्टर इफेक्ट्स तो मैंने आपको बोला ही कि बहुत ज़्यादा था, बट वहाँ पर भी जानने पे बहुत सीखने को मिलता है. यू मीट अ लॉट ऑफ फाउंडर्स ड्यूरिंग द शूट, राइट, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो वहाँ पे आपको 3 शार्क से डील मिली थी, राइट? सो अभी डील क्लोज हो गई हो? नहीं, अभी द इवन नाउ द ड्यू डिलिजेंस इज स्टिल ऑन. ड्यू डिलिजेंस के बारे में? ड्यू डिलिजेंस बेसिकली अब कोई भी इन्वेस्टर है अगर आपको इंटरेस्टेड है आपके ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. आपके अकाउंट्स देखेंगे, आपका जो रेवेन्यू है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, पूरा दे विल गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर कंपनी, राइट, बिफोर दे डिसाइड दैट यस आई वांट टू इन्वेस्ट. तो अब क्या होता है शार्क टैंक पे, देयर सो मेनी ब्रांड्स दैट कम इन एंड दे गिव सो मेनी डील्स, राइट. आई थिंक देयर बैंडविड्थ इज आल्सो लिमिटेड, कि इतने सारे उन सबकी डिलिजेंस करना टाइम लगता है. सो यूजुअली इट टेक्स टाइम. लॉट ऑफ ब्रांड्स आई नो दैट. अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम? अब आई डोंट नो, वो तो वो जाने. हमारा 1 साल हो गया ऑलमोस्ट. 1 साल हो गया. लेकिन अभी तक ये चीज़ मैं सुन रहा था, लाइक दे वर सेइंग कि शार्क टैंक में इस रीज़न की वजह से काफ़ी सारी डील्स क्लोज नहीं होती काफ़ी हद तक. which is true. Which is true. Which और is true. एक स्टार्ट अगर मैं देख रहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस, बट सीजन 1 में दे वर सेइंग लाइक कंप्लीशन रेट वाज 40%. जितनी डील्स उन्होंने एआईआर पे बोली उसकी 40% कंप्लीट करी. एंड सेकंड सीजन व्हिच वाज क्वाइट शॉकिंग, अगेन आई मेंशन आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस, 115 डील्स हुई थी. उसमें से एट दैट टाइम व्हेन आई सॉ दैट आर्टिकल ओनली 1 डील वाज क्लोज्ड.
अच्छा, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओके। लेकिन आपका जो पहला जो था 40% वाला स्टैट, वो आई कैन बिलीव, क्योंकि इनफैक्ट एक शो में देख रहा 40% था, रीजनेबल है लाइक। आई डोंट नो, आई मीन, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है। ओके। क्योंकि एक शो में देख रहा था, अनुपम मित्तल, देयर वाज अ पैनल डिस्कशन ऑफ शार्क्स, और आई रिमेंबर अनुपम सेइंग दैट कि बहुत बार ऐसा होता है कि या तो ड्यू डिलिजेंस फेल हो जाती है कंपनीज, या ड्यू डिलिजेंस होने में टाइम भी लग जाता है। तब तक क्या होता है कि एक तो वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है कंपनीज का। तो अब जब फिर से डील होती है, फिर से जब फाइनल डील करने की बारी आती है, द फाउंडर्स ट्राई टू रीनेगोशिएट द डील। कि अभी जब शार्क टैंक वहाँ पे ऑन एयर तो एक डील हुई थी, एक सर्टेन वैल्यूएशन पे हुई थी, अब वो कंपनी 2x हो चुकी है, तो वो बाहर आएंगे, बोलेंगे यार मैं क्यों इतने कम में करूँ डील, तो वो लोग रीनेगोशिएट करते हैं। और ऑब्वियसली शार्क्स बहुत सारे वो कहते हैं हम रीनेगोशिएट नहीं करेंगे। तो आप अभी कौन सी स्टेज में आपकी वो रीनेगोशिएट मतलब? नहीं, अभी तो हमारी डिलीजेंस ही ऑन है। लेकिन मैं वो मतलब ये अनुपम ने खुद बोला था शो पे एक बार कि रीनेगोशिएशंस जो करते हैं फाउंडर्स, उसकी वजह से बहुत सारी डील्स ड्रॉप होती हैं। सर, एक रीजन है। आपको क्या लगता है, लाइक मैंने अश्नीर ग्रोवर सर की 1-2 वीडियोस देखी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। उनका कहना था कि शार्क के साथ खुद ही पैसा नहीं है, और एक चीज़ तो फैक्ट है सर, पैसा नहीं है। okay. जितना भी सर, वही मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि अश्नीर ग्रोवर सर ने कहा था कि शार्क के साथ खुद पैसा नहीं है, उनकी कंपनीज खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, विच वॉज ट्रू। थर्ड थिंग, उनकी जो इक्विटी है उनकी कंपनी में बहुत कम है, लाइक 3%, 4%, 5%, और वो खुद पैसा उठा रहे हैं बाहर से। तो सर इतने सारे रीजंस की वजह से वो फिर भी शार्क है। तो उनका कहना था कि आधी चीज़ें ड्यू डिलिजेंस नहीं होती, वो जानबूझ के चीज़ें ऐसे डाल देते हैं कि वो डील क्लोज ना हो। तो इस बारे में आप ये हो भी सकता है। आई मीन आई कांट से येस और नो, क्योंकि मुझे इतना पता ही नहीं है। अच्छा। मतलब मैं आई कैन नॉट कंफर्म, आई कैन नाइदर डिनाई, राइट। तो जब मुझे वो अंदर का उनका इकोसिस्टम मुझे नहीं पता है, अश्नीर वुड ऑफ कोर्स नो बेटर, तो आई विल टेक इट एज अ फेस वैल्यू यार, जैसा आप सोचते हो, क्योंकि अभी तक इट्स बीन अ वेरी प्लेजेंट जर्नी हमारी जो रही है। we've been speaking to Anupam's team, we've been speaking to Piyush's team, Vinita's team, all 3 teams we are in touch with. Okay. And very nice people. ऐसा मुझे नहीं लगा कि fake है कुछ या fraud है कुछ। अच्छा। They're very nice people. I know people who जिनमें उन लोगों ने invest किया है। अच्छा। And they're very happy. Right, one of the founders, his company, they featured in Shark Tank season 1. Okay. And they got deals from all 5 sharks there. Okay. Right, he's a good friend. And he's very happy with the कौन सी कंपनी थी? Skippy. Skippy. Okay. So his founder is from Hyderabad. We know him, and he's been very happy. So yeah, like, उनको फंडिंग भी मिली थी, और उनको बहुत सपोर्ट भी मिला है सारे शार्क से। वही पूछना चाहता हूँ, जब भी जरूरत पड़ी उनको टाइम दे पाते हैं मैनेजमेंट वगैरह? हाँ, मतलब अब डे टू डे तो नहीं दे पाएंगे, बट कभी कभी जब आपको जरूरत है, दे आर अवेलेबल। मैंने उतना ही सुना है हमेशा। अच्छा। कि दे आर अवेलेबल, क्योंकि यार उनका खुद का पैसा लगा है, देयर स्किन इज इन द गेम, दे आल्सो वांट यू टू सक्सीड। आपकी कंपनी चलेगी तो उनका भी तो स्टॉक ऊपर जाएगा ना, उनका भी तो इक्विटी ऊपर जाएगा, तो व्हाई नॉट, दे विल डेफिनेटली ट्राई। उनकी टीम हेल्प करती है, कभी कभी वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तक हमारे में भी इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, बट डिस्पाइट दैट अनुपम हैज इनवाइटेड अस, वी मेट हिम। अच्छा। आफ्टर द शो वी वेंट टू हिज ऑफिस इन बॉम्बे एंड वी मेट हिम। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है, एंड ही गेव अस सम ग्रेट इनपुट्स आल्सो व्हिच वी हैव फॉलोड। और अभी तक इन्वेस्टमेंट हुई भी नहीं है उसके? इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली, इन्वेस्टमेंट, ये तो मैं पहले की बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट तो अभी तक नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ फेक है कुछ है। मार्केट में बहुत रूमर्स उठते हैं कि शार्क टैंक इज फेक, शार्क टैंक एक बहुत फ्रॉड है, लाइक ऑल दैट थिंग्स। सो वही है कि उसके मुझे लगता है, देखो कुछ चीज़ें, इट्स बिजनेस, राइट। अगर कुछ थोड़ा बहुत फेक होगा भी तो दोनों साइड से होगा। बहुत से फाउंडर्स भी तो फेक है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही आते हैं। हाँ, मार्केटिंग वो भी तो गलत है ना। ये तो दोनों के लिए अच्छा है, लाइक जो फाउंडर आया उसकी भी सेल्स बढ़ती है। आई सॉ वन स्टार्ट की एक कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट, उस कंपनी की सेल्स बिफोर शार्क टैंक एपिसोड वाज वायरल वाज 1 लाख पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद विद इन 2-3 मंथ्स इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 4-5 करोड़ पर मंथ। सो इस एक्सटेंड की उसकी हाइक हुई थी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। D2C ब्रांड्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है उससे। एग्जैक्टली, उनको मार्केटिंग हो जाती है, फ्री मार्केटिंग। D2C तो चलता है मार्केटिंग पे है। तो आप थोड़ा सा प्रोसेस बताओगे, लाइक आपको कैसे दिमाग में आया कि मेरे को शार्क टैंक में जाना है, देन क्या प्रोसेस था पूरा?
सी शार्क टैंक हम लोग देखते थे शुरू से और बहुत अच्छा लगता था हम लोग को, बहुत ही इंस्पायरिंग था हमारे लिए एज फाउंडर्स। और जब हमने सोचा था कि हम जाएंगे शार्क टैंक, इवन 23 में सोचा था हमने, लेकिन फिर हमें लगा कि थोड़ा उस टाइम हम सिर्फ हैदराबाद में थे, तो बैंगलोर स्टार्ट कर रहे थे तब। ओके। तो हमें लगा यार कि थोड़े और सिटीज में करते हैं, बिकॉज अभी हम जाएंगे शार्क टैंक पे तो वी विल बी कंसिडर्ड अ लोकल ब्रांड। ओके। लेकिन अगर हम 3-4 सिटीज में ओपन करते हैं तो वी कैन ट्राई टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स एज अ नेशनल ब्रांड, कि वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट दिस, एक्सपैंड कर रहे हैं सब। तो फिर हमने 4 सिटीज में करने के बाद अप्लाई किया 24 में, क्योंकि तब तक हम 4 सिटीज में आ चुके थे। जैन 2024 तक हम लखनऊ में भी आ चुके थे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, लाइक कैसे? तो यू हैव टू गो एंड अप्लाई ऑन सोनीज वेबसाइट। ठीक है। तो पहले आप अप्लाई कर दोगे, हाँ। और इनके सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड होते हैं। अच्छा। तो एवरी राउंड में वो एलिमिनेट करते जाते हैं लोगों को। तो पहला तो आपको सिंपल एक उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। ठीक है। फिर अगर आप उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया आप में, तो दे विल सेंड यू अ फॉर्म टू फिल। ओके। इट्स अ वेरी लॉन्ग लेंदी फॉर्म। कितना टाइम लगता है लाइक इसमें पूरे में? उसमें टाइम देते हैं वो लोग। इट्स अ लेंदी फॉर्म, इट्स मतलब एटलीस्ट 8-10 पेजेस का होगा, ज़्यादा ही होगा। तो उसमें जब they'll ask you a lot of essay type questions, where they'll ask you your vision, they'll ask you what is a uniqueness of your brand, uniqueness of your product. बहुत सारे फाइनेंशियल्स पूछेंगे आपसे, आपकी बिजनेस मैट्रिक्स पूछेंगे, कैसा कर रहे हो आप, ठीक है। फाउंडर्स के बारे में पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, मतलब वेरी वेरी डिटेल्ड। देन उसके बाद नेक्स्ट फिर वो जब सेलेक्ट, उसमें भी आपका सिलेक्शन होता है क्योंकि एलिमिनेशन हो जाते हैं उसमें पे। उसके बाद अगर वहाँ भी आपने वो क्लियर कर लिया, तो फिर वो आपको एक बोलेंगे कुछ 3 मिनट का वीडियो बना के भेजो। ओके। तो उसमें हमने वीडियो बना के भेजा हमने। फिर उसमें स्टार्टिंग के टाइम पे आप वो वैल्यूएशन वगैरह सब इनपुट डालते हो उनको कि कितनी इन्वेस्टमेंट? हाँ, वो पूछते हैं, वो फॉर्म में पूछते हैं वो कि आपका कितना रेवेन्यूज है, आप कितना अपना आपको वैल्यूएशन है आपका, कितना आस्क है आपका, वो सब उसमें ही पूछते हैं। देन सेकंड राउंड, उसके बाद सेकंड राउंड में मान लीजिए 3 मिनट वीडियो बनाई आपका वीडियो बेसिकली आई थिंक दे वांट टू टेस्ट इज कि how confidently you speak on camera, right? How do you come across, right? All that I think they ask. So आपने वो बना के भेजा, फिर वो भी एक एलिमिनेशन राउंड है। वहाँ भी आप सेलेक्ट हो गए, then they will call you personally to one of their auditioning centers. दिल्ली, बॉम्बे में होते हैं। तो हम बॉम्बे गए थे, one of the hotels they had invited us. तो वहाँ पर पूरा पैनल रहता है। ओके। आपको वो जैसे आप शार्क टैंक में करते हो ना, वैसे एक मॉक पैनल रहेगा। आप उनके सामने जाके अपना पूरा वैसे प्रेजेंट करोगे जैसे शार्क टैंक में करते हो। ठीक है। एंड दे विल क्वेश्चन यू। वहाँ पे वो बुलेट वाला करा था? वो नहीं किया था, वो तो खैर लास्ट मोमेंट हमारा वो इम्प्रोवाइजेशन था। वो बुलेट काफी कूल लगा था वो आइडिया। नहीं, हमारा ही आइडिया था, हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। तो हमारा यार, हमें ये भी था कि इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अ टीवी शो। तो व्हाट डू दे वांट? दे वांट TRPs, राइट? एंड not all the Shark Tank pitches that happen get aired finally. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि एयर होना है, चाहे डील मिले ना मिले, एयर होना बहुत जरूरी है। तो एयर होने के लिए क्यों, हाउ डू यू इंश्योर कि आप एयरिंग हो, कुछ करो, कुछ TRP आए। तो हमने कहा यार तो क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा पार्ट भी था इस पूरी क्या नाम है पिच का कि जो उन्होंने एयर नहीं करा हो? हाँ, ऑफ कोर्स हमारा जो पिच था वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का पिच था यार। 1 घंटे का? हाँ। और उन्होंने केवल 10-15 सिर्फ 15 मिनट का दिखाया उन्होंने। ओके। 45 मिनट्स एडिट होता है, बट दोज 45 मिनट्स आर बोरिंग डिटेल्स। हाँ, ये क्या था वो इतना डिटेल में जाएंगे नंबर्स में, वो nobody wants to hear, right? उनको एग्जैक्टली TRP चाहिए। तो उसके बाद they edit the best moments, right? And then they show it, which is a good format. उसके बाद क्या होता है, लाइक थर्ड राउंड जब ऑडिशनिंग होती है आपकी, तो आप प्रॉपर वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देते हो, पूरा कैमरे में रिकॉर्ड होता है, और आप वैसे अपना प्रोडक्ट खिलाते हो सबको। ये सब कुछ होता है वैसे ही जैसे स्टूडियो में होता है। तो उसके बाद वो सब हुआ, दे रिकॉर्ड इट, और वो फाइनल राउंड होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो फिर आपको सीधे फिर कॉल आता है कि आप स्टूडियो आप आओ, और आपका फाइनल शूट है शार्क्स के सामने होगा। कहाँ पे होता है वो शार्क्स के साथ वाला? वो मुंबई में फिल्म सिटी में का सेट है सोनी का। ठीक है। तो वहाँ पे आपको डील मिली थी ऑफ कोर्स। सो 3 शार्क्स आपको डील मिली थी, पीयूष, विनीता, अनुपम। इन तीनों के लिए एक वर्ड।
यार मैं इतना पर्सनली नहीं जानता हूँ उनका Okay. उनको शार्क टैंक में बट आप बातचीत तो ये हाँ तो अगर एज अ व्यूअर मैं बताऊंगा आपको हाँ। नॉट एज अ यू नो आई स्टिल डोंट नो देम वेल एज इन्वेस्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी ऑनेस्ट ऑल थ्री वर माय फेवरेट्स ओके तो आप expect उनमें कर से रहे थे उनमें कि से इन मेरे को तीनों से तीनों में से मुझे- एक भी मिलता तो आई वुड हैव बीन यू नो वेरी वेरी हैप्पी तो आप तीनों को एक्सपेक्ट हाँ। कर रहे थे कि इन तीनों में मैं से तीनों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था नहीं कर रहे थे बट चाहता तो मैं ऑल 5 शार्क डील था हाँ राइट लेकिन एक से भी मिल जाता इनमें से तो मैं बहुत खुश होता 3 मिल गया तो इट वाज अ यू नो ह्यूज बोनस फॉर अस हाँ और वो भी डबल मिल गया 70 मांगा 1.4 मिल गया तो बहुत अच्छी बात सो तो आई मीन वो बहुत अच्छा लगा हमें कि दे शोड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस या सो लेट्स स्टार्ट विद विनीता के लिए एक I think Vinita is, I find her very smart, very self-made ओके woman and very, very sharp. I mean, मैं वैसे भी उनकी pictures देखता हूँ जो लोग, the kind of questions she asks, right? And she shows the kind of, you know, caliber she has. Very, very impressive. Vinita is very impressive. Again, Anupam, I think, is the most experienced of the lot in the entire tank. वो लेके आते हैं अपना एक बहुत सॉलिड पर्सपेक्टिव बिजनेस करने का जब हम उनसे मिले भी थे ना आई वाज अमेज्ड ही हैज नेवर इन्वेस्टेड इन अ फूड स्टार्टअप अच्छा राइट यू आर हिज फर्स्ट उन्होंने कभी नहीं किया ही हिज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राइट इफ इट हैपेंस दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इवन फॉर पीयूष इवन पीयूष सेड इट ऑन एयर हाँ इन द शो दैट आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन अ फूड मैंने आज तक खाई नहीं है and all. और उन्होंने ये भी बात एंड में बोला कि आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन अ फूड ब्रांड ये पहला इन्वेस्टमेंट है मेरा हाँ तो अनुपम और पीयूष दोनों का पहला था एक तरह से ओके तो और उसके बाद अनुपम ने उसके बावजूद विदाउट यू नो इज नेवर रन अ फूड बिजनेस जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने ऐसी ऐसी हमें टिप्स दी और ऐसी इनसाइट्स दी हाँ तो हमें लगा यार ये तो कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा ही दे सकता है जिसका फूड में एक्सपीरियंस हो बट ही कुड गिव क्योंकि ही इज लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मतलब so Anupam के लिए is like he's an experienced guy very experienced and very knowledgeable not just about his own industry but about other industries also exactly then पीयूष अगेन पीयूष ने जो बिजनेस बनाया है यार लेंस गार्डन हैट्स ऑफ क्या बिजनेस क्या ब्रांड बनाया है exactly और क्या इनोवेशंस किए हैं क्या तो ऑफ कोर्स यू नो आई एम और पीयूष ऐसा बंदा यार और मुझे लगता है कि अगर आप एक सर्वे करोगे ना तो मुझे लगता है पीयूष के अमन और पीयूष के सबसे ज्यादा फैंस निकलेंगे अच्छा सारे शार्क्स में पीपल जस्ट लव देम आई डोंट नो व्हाई व्हेन दे हैव समथिंग तो अमन ऑफ कोर्स इज मोर यू नो वो एंजॉय करता है बहुत और उनके वो शॉर्ट्स बहुत वायरल होते रहते उनके बहुत वायरल होते हैं हैं डायलॉग्स इन शॉर्ट्स बहुत एक अश्नीर सर के और एक उनके राइट दे गिव अ लॉट ऑफ दीज टिडबिट्स टीआरपी देते हैं मुझे लगता है एग्जैक्टली लेकिन पीयूष ऐसे नहीं पीयूष आपको देखोगे पीयूष विल he स्पीक seems to be very humble and he speaks very less yeah but whenever he speaks he will speak so much of substance right he just knows in very few words he will you know और मुझे लगता है उनकी बिजनेस पे बहुत सॉलिड पकड़ है दिखता है वो दिखता है उनके जब बात करते हैं तो वो ऑल थ्री हैव देयर ओन स्टाइल्स और ओन स्ट्रेंथ्स सो होपफुली सर आपको डील मिले फॉर श्योर हमारी विशेष हैं सर आपके साथ देन सर पीयूष ने एक चीज़ बोली थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बात करी कि उन्होंने आज तक सोया चाप नहीं गई सेकेंड थिंग उन्होंने बोली थी कि ये एज ऑफ ड्रिंकिंग कल्चर के साथ चला था तो इस बारे में आप बताएंगे यार ऐसे तो फिर हर चीज़ ड्रिंकिंग कल्चर के साथ है कोई भी चिकन के भी आप सारे कबाब्स खाओगे तो वो भी सब ड्रिंक्स के साथ पीते और दूसरा एक पर्सपेक्टिव होता है उन्होंने कहा कि कहीं वेज हाउसेस में मशरूम नहीं खाया जाता जैसे तो ऐसी चाप नहीं खाई जाती वो भी है वो भी बात है और धीरे धीरे वो जा रही है चीज़ अच्छा क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि यार नॉनवेज थोड़ी है एग्जैक्टली इवन आई यूज्ड टू थिंक दिस मतलब मैं जब छोटा था तो वो जैसे चाप को ऐसे हैंग करते हैं ना तो चलते हैं तो यार मैम ये तो नॉनवेज है ऐसे करके हमारे दिमाग में था लेकिन वो अवेयरनेस प्रॉब्लम है एक दिन आप खाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो है ही नहीं मैं क्या सोचता था फिर देन यू विल स्टार्ट ईटिंग मेरे दोस्तों ने मुझे खिलाई भाई खाओ देखो नहीं है कुछ भी ऐसे करके ओके सो इसके लिए ऑफ कोर्स आप मार्केटिंग करते होगे सो एनीथिंग वेरी क्रेजी कि आपने मार्केटिंग के लिए कुछ बहुत ही अलग करा हो लॉन्च करने के लिए कुछ नहीं यार मुझे लगता है हमने सबसे क्रेजी मार्केटिंग हमारा स्टंट वही था कि हम शार्क टैंक चले गए शार्क टैंक बुलेट पे गए शार्क टैंक बुलेट पे चले गए आई थिंक उससे वही काफ़ी वायरल हो गया और उससे काफ़ी लोग हमें जान गए उसके अलावा वी डू अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज दिस इज द एज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिना उसके आप यू नो कर नहीं सकते लेकिन मुझे लगता है फूड रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है ना कि you have to be physically present and people should love your taste और जो word of mouth से जो marketing होती है ना कोई marketing match नहीं कर सकता और ये भी एक लेवल तक ही करते हैं ना ऐसी
मार्केटिंग वगैरह से आप एक बार को कस्टमर को ले एक बार ले आओगे, उसका वो रिटेंशन रेट बनाने के लिए तो लेकिन आप जो एक बार जो बंदा ला रहे हो अगर उसने पसंद आ गया ना, वो 10 लोग को जाके जब बताएगा ना, वो वो बेस्ट सबसे बेस्ट होती है। लाइक मैं बता तो रहा था आपको, मेरे को खुद मेरे दोस्तों ने खिलाई जा कि भाई खाओ, बस तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा काम करता है। वर्ड ऑफ माउथ ही है। Okay. So sir, let's talk about the now industry metrics and all these things. Sir, you are in the QSR industry. तो सर सबसे पहले आप बताओगे like what is QSR industry और इसकी तरह की क्या क्या इंडस्ट्री होती है? See, QSR means quick service restaurants, Okay. right? तो आपके जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, सबवे हो गया, हल्दीराम्स हो गया, these are all QSRs. ठीक है। जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जाओगे, आप 1 घंटा 2 घंटा बिताओगे रेस्टोरेंट, आप जाओगे, क्विकली ऑर्डर किया, खाया, निकल गए 15-20 मिनट में करके 15-20 मिनट में सब। हाँ। तो और आप एक्सपेक्ट करो कि जल्दी से ऑर्डर आए, हाँ। जल्दी खाऊं या फिर टेक अवे ले लूं, चले जाऊं। फिर आते हैं CDR, विच आर कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, Okay. राइट? और कुछ बहुत सारे रेस्टोरेंट होते Dining हैं, जिसको अब जाओगे थोड़ी देर खाओगे, बट दे आर नॉट फाइन डाइनिंग, बट दे आर कैजुअल डाइनिंग। Okay. Dining फिर एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे आप जाओगे, पूरा दे गिव यू अ लॉट ऑफ गुड एम्बियंस, गुड एक्सपीरियंस, द फूड विल बी एक्सपेंसिव, हाँ। राइट? तो एक फाइन डाइनिंग और QSR के बीच में होता है कैजुअल डाइनिंग, Casual dining. राइट? विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर नॉट रियली प्लेइंग ऑन द एक्सपीरियंस पार्ट। Ambience part पे इतना हाँ, ज़्यादा लेकिन वो आपको फुल फ्लेजेड, आप जाओगे, 1 घंटा बिताओगे, आप खाना खाओगे, प्रॉपर ऑर्डर करोगे, खाना खाओगे, वैसा होता है। तो ये ऐसे 3 मेन कैटेगरी। So you are in a QSR industry, right? So इसके बारे में आपके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या आपका मानना है कि कैसी इंडस्ट्री है? See, I think QSR industry is one of the fastest growing industries, Okay. right? जैसे क्योंकि लोगों को ना जल्दी सब कुछ चाहिए आज की डेट में, और कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ रहा है तो कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ रहा है, ज़्यादा। वो आपको लगता है कि दे वांट गुड फूड क्विकली। जैसे आपका क्विक कॉमर्स कितना आपके gain चाप का कर रहा है, लाइक वैसे ही है। एवरेज टाइम क्या है प्रिपरेशन? 5 वेटिंग टाइम मतलब to 10 minutes. ओनली 8 मिनट्स। एंड क्लाउड किचन वगैरह के बारे में बताओगे थोड़ा, ये रिलेशन QSR का क्लाउड किचन से? क्लाउड किचन, देखिए, especially after COVID, cloud kitchens have the industry has really First of gone all, up. what is like cloud kitchen? Cloud kitchen is where you have dark stores where you can't visit, but it's only available online, ऑनलाइन, right? That's why they're called cloud kitchens. आप online Swiggy या Zomato पे order करोगे और आ जाएगा, but you can't really visit those places, right? They don't have any dine-in format or a takeaway format. Those are called cloud kitchens. ओके। तो वो भी आप हो क्लाउड किचन? हम लोग नहीं है cloud kitchens में, we are not in cloud kitchen format because primarily because of the product we serve, right? Because Chaap is, we believe that any kebabs is one product which you should have fresh when you go, and because that's where the experience lies, right? Online order करने में although still good, but you don't get the same kind of experience when you get the fresh kebab. सर मैंने सुना है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। लाइक मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी कि इंडिया में गन को ओन करने के लिए आपको 12-13 लाइसेंस चाहिए और रेस्टोरेंट को ओन करने के लिए 32 लाइसेंस चाहिए। क्या कहना चाहिए? यार वो है क्या इतने कंस्ट्रेंट compliances, सच में हैं इस पूरी इंडस्ट्री में? 32 तो नहीं चाहिए, मतलब हर फूड बिजनेस के लिए 32 नहीं चाहिए। कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेस होते हैं उसमें ज़्यादा चाहिए, कुछ में कम चाहिए। और कुछ तो बेसिक्स हैं जो आपको करना ही होता है, जैसे आपको जैसे FSSAI लाइसेंस लेना है, आपको फूड लाइसेंस लेना है, फायर एंड ये सब। फायर लाइसेंस लेना है। फायर लाइसेंस भी हर स्टेट में मैंडेटरी नहीं है, अच्छा। कुछ में है, कुछ में हर क्योंकि स्टेट वाइज licenses state wise अलग-अलग स्टेट लेने वाइज होते हैं। कंप्लायंसेस होते हैं, हर जगह स्टेट वाइज होते हैं। और लाइक अब आप जैसे बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे में सबसे ज्यादा कंप्लायंसेस वहाँ मिलेंगे आपको, अच्छा। राइट? लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। सो अगर आपने उस स्टेट का एक बार लाइसेंस ले लिया तो आप नेक्स्ट स्टोर के लिए अलग लेना पड़ेगा या हर स्टोर के लेना पड़ेगा हर आपको, स्टोर के बिल्कुल। लिए? कुछ चीजें होती हैं जैसे GST आप लेते हो, वो स्टेट का हो गया, हाँ वो तो राइट, वो नहीं। लेकिन बाकी जो कुछ कंप्लायंसेस वो आपके स्टोर वाइज लेनी होती है आपको। तो फिर तो फूड लाइसेंस लेना है आपको, फायर लाइसेंस लेना है आपको, लेबर लाइसेंस लेना है, ट्रेड लाइसेंस लेना है। तो बार बार इस प्रोसेस को कोई भी स्टोर खोलो तो बार बार सर कई सारे हिंड्रेंसेस भी आते हैं जैसे बीच में, लाइक हिंड्रेंस आ गया क्वालिटी के ऊपर या एलिगेशंस उठते हैं। सो क्या ऐसा कुछ केस हुआ अभी तक आपके साथ? नहीं, थैंकफुली अभी तक तो मतलब यू नो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बट यार ये फूड इंडस्ट्री ऐसी है कि क्योंकि बहुत ऐसा ना, बहुत सेंसिटिव सी इंडस्ट्री है, बहुत सेंसिटिव है। अब यार वो ना कई बार तो ये भी होता है, हमारा थैंकफुली नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ होता है। हाँ तो मुझे ऐसा भी लगता है कि यार कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है। वही यार मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जहाँ कस्टमर्स themselves have, you know,
रेज्ड फॉल्स एलिगेशंस, राइट, वो भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के किचन्स भी बहुत गंदे हैं और वो भी नहीं हाइजीन रख रहे हैं। हाँ। तो वो सच भी हो सकता है। अच्छा। तो वो बहुत डिफिकल्ट है पिन पॉइंट करना कि कौन सही है कि कौन नहीं है। तो लेकिन मुझे ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं दे, और वो अच्छे ब्रांड इसीलिए हैं क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन कर follow रहे हैं। दे हैव मनी टू इन्वेस्ट टू इंश्योर दैट देयर क्वालिटी इज मेंटेन्ड, देयर हाइजीन इज मेंटेन्ड। एक बार को वो प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। अगर मुझे जाना है मैं एक अच्छे ब्रांड पे जाके खाऊंगा क्योंकि उन पे मुझे ज्यादा ट्रस्ट है रादर गोइंग टू सीट साइड वेंडर। सही बात है। तो सर लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, किसी को मान लीजिए एज अ स्टार्टअप उसको फॉलो करना है, ठीक है, इंडस्ट्री में ही, आपकी इंडस्ट्री में ही एक फूड बिजनेस खोलना है, एक प्रॉपर गाइड आपके लिए क्या रहेगी कि कब उसको सोचना चाहिए यस इट इज द राइट टाइम आई शुड स्टार्ट एंड ऑल? See, first of all, Step to by start step any starting. business, I don't think कि right time कुछ होता है। ओके। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, हाँ। if you are passionate enough to follow it, तो there is no right time। आपको it's more about making up your mind and going for the execution। Just go ahead and do it। That's what I say, right? कोई अच्छा टाइम नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं मैं अभी नहीं, ये 2 महीने बात करूंगा, 6 महीने बात करूंगा, वो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको मुझे लगता है कि कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, यू हैव टू डू अ वेरी थॉरो रिसर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना, आपके पास ना टाइम रहेगा ना बैंडविड्थ रहेगी कि टू डू दैट रिसर्च। जो होती है पहले होती है। सो पहले चाहे स्टार्ट करने में डिले कर दो बट रिसर्च बिल्कुल, लेकिन रिसर्च हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्विंस कि हाँ यार आई वांट टू डू इट एंड बिकॉज ये होगा। देखो कोई भी बिजनेस में हमेशा देयर विल बी चांसेस ऑफ फेलियर, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे तो इस इंडस्ट्री में तो फेलियर रेट्स भी बहुत ज्यादा हाँ, है, बहुत 70-80 से बिल्कुल 90% है यार ऑलमोस्ट। मतलब 100 रेस्टोरेंट स्टार्ट होते तो 90 बंद हो जाते हैं पहले साल में। हाँ। तो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हो तो आपके चांसेस ऑफ फेलियर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मैं कैसी मार्केट में घुस रहा हूँ, किस तरह के लोग हैं, मेरी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस क्या होगी, प्राइस पॉइंट क्या रखना चाहिए, मेरे फ्लेवर्स का या मेरी रेसिपी का यूनिकनेस क्या है, सब कुछ क्योंकि अब आप वही कर रहे हो जो सब बैठ के कर रहे हैं, आप कुछ नया नहीं दे रहे हो, कुछ अलग नहीं दे रहे हो, राइट? तो क्या चांस है कि आपका चलेगा? व्हाट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स? तो सर मान लीजिए मैंने सोच लिया कि अच्छा ठीक है, रिसर्च कर ली, दिस इज माय आइडिया, देन तो आपने रिसर्च अच्छे से कर ली। सेकंड फिर ये होता है कि आपको फाइनेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे फाइनेंस कर रहे हो अपने बिजनेस को? आप खुद से फाइनेंस कर रहे हो, आप फंड उठा रहे हो, वो पूरा यू हैव टू फिगर आउट, राइट? कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, राइट? कई बार क्या होता है कि लोग बहुत एक एस्टिमेट ले लेते हैं बट दे डोंट गो डीप इनटू इट, राइट? एंड देन दे यार मैंने इतना बजट लगा था, मेरा तो बजट डबल हो गया इवेंचुअली होते प्रैक्टिकली समझना है कि कितना एग्जैक्ट मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या आरओआई मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उस पे। तो ये सब पूरा यू हैव टू रियली वर्क आउट द नंबर्स वेरी वेल, बिकॉज एनी बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर्स, राइट? सर अगर जैसे इंडिया में बात करें, एक बार को हम फूड इंडस्ट्री को थोड़ा साइड रखते हैं, देन इफ यू टॉक अबाउट अ जनरल बिजनेस, एक स्टार्टअप अगर किसी को करना है और वो यंग पर्सन है, तो उसका वो क्या प्लान रहना चाहिए? जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि लाइक आई एम प्लानिंग कि मैं अभी यूजी कर रहा हूँ, पीजी करूंगा, देन 5-7 साल एक्सपीरियंस करूंगा, देन मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ना कहीं से रिस्क पे नहीं उठाना चाहता पैसा, और मैं 5-7 साल में सेविंग करूंगा एंड ऑल। सो क्या ऐसा सोचना ठीक है, या मतलब क्या आपकी थिंकिंग है इसके बारे में? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी इट्स ऑल अबाउट द हर इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। एग्जैक्टली, रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल सबकी अलग है। किसी का क्या बैकग्राउंड है, अब ऐसे नहीं बोल सकते ना, वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, राइट? कुछ लोग के पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उनको नहीं, मैं कॉलेज करते ही बिजनेस करूंगा, मुझे सपोर्ट है, इतना सपोर्ट है उतना, ही कैन अफोर्ड टू फेल, राइट? कुछ लोग दे कांट जस्ट अफोर्ड टू फेल, वो दे वांट कि मैं कैपिटल बना लूं फिर मैं इन्वेस्ट करूं। दैट्स आल्सो राइट, टू ईच हिज ओन होती है। सो पहले चाहे स्टार्ट करने में डिले कर दो बट रिसर्च बिल्कुल, लेकिन रिसर्च हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्विंस कि हाँ यार आई वांट टू डू इट एंड बिकॉज ये होगा। देखो कोई भी बिजनेस में हमेशा देयर विल बी चांसेस ऑफ फेलियर, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे तो इस इंडस्ट्री में तो फेलियर रेट्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत 70-80 से बिल्कुल 90% है यार ऑलमोस्ट। मतलब 100 रेस्टोरेंट स्टार्ट होते तो 90 बंद हो जाते हैं पहले साल में। तो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिसर्च बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हो तो आपके चांसेस ऑफ फेलियर्स मिनिमाइज हो जाते हैं,
बस राइट सर अगर जैसे इंडिया में बात करें, एक बार को हम फूड इंडस्ट्री को थोड़ा साइड रखते हैं, देन इफ यू टॉक अबाउट अ जनरल बिजनेस, एक स्टार्टअप अगर किसी को करना है और वो यंग पर्सन है, तो उसका वो क्या प्लान रहना चाहिए? जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि लाइक आई एम प्लानिंग कि मैं अभी यूजी कर रहा हूँ, पीजी करूंगा, देन 5-7 साल एक्सपीरियंस करूंगा, देन मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ना कहीं से रिस्क पे नहीं उठाना चाहता पैसा, और मैं 5-7 साल में सेविंग करूंगा एंड ऑल। सो क्या ऐसा सोचना ठीक है, या मतलब क्या आपकी थिंकिंग है इसके बारे मुझे में? लगता है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी इट्स ऑल अबाउट द हर इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल सबकी अलग है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, अब ऐसे नहीं बोल सकते ना वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, राइट। कुछ लोग के पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उनको फर्क, उनको नहीं, मैं कॉलेज करते ही बिजनेस करूंगा, हाँ, मुझे सपोर्ट है इतना सपोर्ट फाइनेंशियली, है उतना, ही कैन अफोर्ड टू फेल, राइट। कुछ लोग दे कांट जस्ट अफोर्ड टू फेल, वो दे वांट कि मैं कैपिटल बना लूं फिर मैं इन्वेस्ट करूं, दैट्स आल्सो राइट, टू ईच हिज ओन। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेस की गारंटी एक केस में है दूसरे केस में नहीं है। दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि जितना आप मेहनत। बहुत सारी चीजें होती हैं यार कोई भी बिजनेस को सक्सेस बनाने में, एंटरप्रेन्योर इज नंबर 1, राइट। आप कितने पैशनेट हो, आप कितना अच्छे से कर रहे मार्केटिंग हो सब काम, कुछ, फाइनेंस है। और सब एक बार एक लेवल तक होता है, उसके बाद तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट है, कितनी मेहनत यार है मोस्टली इन्वेस्टर्स किस पे इन्वेस्ट करते हैं? पर्सन पे। आइडिया पे थोड़ी करते हैं, एग्जैक्टली, प्रोडक्ट पे थोड़ी करते हैं, हाँ वो फाउंडर पे करते हैं। हाँ हाँ। सो इट्स लाइक उसके बाद हम क्या करें, हम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां जो आप कहो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में तो बहुत सारी हैं क्योंकि देखो मुझे, हाँ, तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है टू लोकेशन। लोकेशन, मुझे लगता है कि फूड बिजनेस में ना द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज द राइट लोकेशन। कितने लोग देख पा रहे हैं आपको? राइट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास इतना अच्छा मैं ब्रांड बना रहा हूँ, ये है वो है, मैं किसी रिमोट कॉर्नर में जाके खोल दूंगा तो भी लोग आएंगे क्योंकि मेरा रेंट वहाँ कम है, लेकिन मैं इतना अच्छा पुल करूंगा लोग आ जाएंगे, हाँ, और वो फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि स्पेशली फॉर QSR, बिकॉज आई डू QSR, मेरा एक्सपीरियंस QSR में, तो आई विल बी वेरी वेरी, मेरी को क्लैरिटी ज़्यादा है QSR बिजनेस में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको QSR बिजनेस करना है तो यू हैव टू ओपन अ स्टोर जहाँ पे वेरी हाई फुटफॉल हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, लोगों को बहुत एक्सेसिबल हो, राइट। काफी हद तक इसमें आई गेस इम्पल्स बाइंग भी काफी, इम्पल्स बाइंग ही होती है, QSR इज ऑल अबाउट इम्पल्स बाइंग। आप सोच के घर से निकलेगा कि ठीक है मैं मॉल में जा रहा हूँ तो फूड कोर्ट में खाऊंगा, एग्जैक्टली वो इम्पल्स करेगा, अच्छा मॉल में आया तो साथ साथ चलो फूड कोर्ट चल, बिल्कुल। तो सारी और फूड कोर्ट में जाने के बाद उसको नहीं पता कि क्या खाना है, उसको देखने में अच्छा देखेगा, अच्छा ये भी अच्छा, ये भी ऐसे उस टाइम डिसाइड करेगा। तो आपको उतना एक्सेसिबल होना चाहिए कि आप बिल्कुल राइट इन हिज फेस। तो एग्जैक्टली कि यहाँ पे मैंने ये देखा कि फूड कोर्ट में हम ये कॉम्पीट नहीं करते कि क्या कॉमोडिटी है, हम लोग ये कम्पीट करते हैं किस ब्रांड से हम कम्पीट कर रहे हैं। करेक्ट। वो ये सोच के नहीं आएगा कि फूड कोर्ट में जा रहा तो बर्गर खाना है मेरे को, फ्राइज खाना है, ये थिंक कि अच्छा डोमिनोज खाऊं या मैकडी खाऊं या फिर गब्बरी चाट। वो सब हमारे कॉम्पिटिटर है, एग्जैक्टली, नॉनवेज वाले भी कॉम्पिटिटर है, हर बंदा कॉम्पिटिटर है मेरा। हाँ सर, इसमें फूड इंडस्ट्री में देख रहा हूँ काफी टाइम से सुन भी रहा हूँ ये कि लास्ट 5 to 7 years में जो मार्जिन हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गए हैं, जिसका बहुत बड़ा रीजन बताते हैं एग्रीगेटर्स। तो सबसे पहले तो आप एक बार एग्रीगेटर्स के बारे में बता दें, कौन है, क्या है? सी एग्रीगेटर्स तो वही प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको एक मार्केट प्लेस देते हैं, जैसे एक स्विगी है, तो स्विगी में सब लोग जाके आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, राइट। Amazon is an aggregator, right? So Zepto is an aggregator, तो वैसे ही है। तो इसकी क्या कंडीशन है लाइक? तो अब वो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको आपके ब्रांड को विजिबिलिटी दे रहे हैं कि आप घर घर में आपके ब्रांड को, बंदा फोन ओपन कर रहा है तो आपका ब्रांड दिख रहा है, तो उस लेवल का एक्सपोजर दे रहे हैं आपके ब्रांड को, तो दे चार्ज देयर ओन कमीशंस फॉर दैट। अच्छा, राइट। वो आपको पूरी सर्विस दे रहे हैं कि आप, उनका बंदा जाएगा आपके स्टोर से उठाएगा फूड और घर पे डिलीवर करेगा। सो दे चार्ज, दे डू चार्ज वेरी हेवीली, राइट। इनफैक्ट दे चार्ज सो हेवीली दैट sometimes it's not sustainable। कितना? समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 20 से 30% तक कमीशन रहते हैं। अच्छा, राइट, प्लस GST। हाँ, GST की बात मैंने एक चीज और सुनी थी कि रेस्टोरेंट बिजनेस को, फूड इंडस्ट्री में ना गवर्नमेंट की तरफ से GST इनपुट नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि फूड में वी आर ऑन इन 5% स्लैब। तो अगर 5% स्लैब तो ऑलरेडी बहुत कम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो जो 5% स्लैब होता है उस पर इनपुट नहीं मिलता आपको। अच्छा, कोई भी चीज अगर 5% स्लैब पे बेच रहे हो तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है। सो लाइक हमने अभी बात करी पूरे बिजनेस के बारे में, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं एग्रीगेटर्स के बारे में। सो एग्रीगेटर्स के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि एग्रीगेटर्स की वजह से फूड इंडस्ट्री का भी बिजनेस मार्जिन्स डाइल्यूट हो रहे हैं, ठीक है। मैं एग्रीगेटर्स के मैंने देखता था, जोमेटो वगैरह भी, ये भी प्रॉफिट में नहीं थे। जोमेटो ने अभी रिसेंटली प्रॉफिट करना स्टार्ट करा है, तो फिर प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? ना एग्रीगेटर्स प्रॉफिट बना रहे थे, ना फूड इंडस्ट्री प्रॉफिट बना रही है। सो तो क्या ये यार, प्राइसिंग की प्रॉब्लम है या यार बहुत प्रॉब्लम क्या है? कम ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट भी पैसा बनाते हैं और एग्रीगेटर्स भी पैसा बनाते हैं। अच्छा। अब ये देखो कि एग्रीगेटर्स आने की वजह से हम्म द ओवरऑल पाई हैज इंक्रीज्ड। हम्म जो बहुत से लोग पहले नहीं भी खा रहे थे, ऑनलाइन इजी हो गया तो इसलिए वो मार्केट खाने बहुत लगे। बढ़ गया है उनकी वजह से। अच्छा। तो ओवरऑल इज बेनिफिटेड एवरीवन। हम्म मार्जिन ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि गिव एंड टेक वाली चीज है, जब गिव एंड आपको टेक है, कुछ कुछ तो आपको मार्केट बढ़ रहा है आपका, तो हाँ। कहीं तो आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, हम्म तो आपको स्विगी जोमेटो को देना पड़ेगा ना। हाउ विल दे आल्सो सर्वाइव? हम्म बट एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट्स भी आप देखोगे हाँ तो वो सेम प्राइस जो ऑफलाइन में दे रहे हैं वो ऑनलाइन में नहीं देते हैं। हाँ, वो बड़ा है। वो प्राइसेस भी तो इन्फ्लेट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो तो कॉम्पेंसेट कहीं ना वो करेंगे वो। कॉम्पेंसेट कर लेते हैं वो। हाँ, मैंने फिर सुना भी था। मार्जिन कम हाँ, होते हैं, वो उतना नहीं हाँ, कर पाते हैं कि हाँ। अब अगर वो 25% आपसे कमीशन ले रहा है तो आप तो इतना 25% नहीं रेट नहीं बढ़ा दोगे सकते, ना, थोड़ा बहुत लाइक अप टू थोड़ा सा एक्सटेंट। होता है। मैंने इसके बारे में सुना था, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ONDC। बताएंगे आप इसके बारे में थोड़ा? Yeah, they have been working on it for quite some time, but it's not really taken off yet. आज की डेट में भी स्विगी जोमेटो are practically ruling the market. तो ONDC क्या ONDC है? is nowhere. It's like a government initiative कि to have their own uh, ecosystem where they deliver food at a much lesser prices, but it's not been successful yet. ओके, सो आपको क्या लगता है लाइक मुझे आगे लगता है इसकी मुश्किल है। positive अभी तो मैं भी सुन रहा हूँ कि trajectory इवन रहेगी? रिलायंस इज गेटिंग इनटू दिस बिजनेस, Industry. जियो इज आल्सो डिलीवरी बिजनेस। हाँ। तो विल वेट एंड वॉच। अभी तक तो आपको- खैर स्विगी जोमेटो का कोई मैच नहीं है, अभी तक तो पूरी बहुत मार्केट उन established हो दोनों चुके की ही हैं, है। हाँ। रूल कर रहे हैं मार्केट को। आपको लाइक एज अ ओवरऑल स्टार्टअप इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, इकोसिस्टम के बारे में इंडिया के, तो आप क्या कहना चाहोगे? लाइक ट्रैजेक्टरी कहाँ जा रही है, कितने पेस पे चल रहा है? यार अभी तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। हम्म India is one country which I think can overtake everyone, but it will take time. टेक टाइम। अगर आप चाइना से कंपेयर करो अभी बहुत पीछे है, बहुत आगे जाना है। There's a lot of scope for new ventures, new Is government startups to working come in the in. right way कि Oh yes, startup oh yes, वगैरह oh को? yes. बहुत strong I है। think there's a lot of boost that the startups have got in the last few years. अच्छा। So the whole, and you can see, right? I mean, shows like Shark Tank why are they so popular amongst today's youth? Yeah, Because people are thinking in that direction. These kind of shows are inspiring them. yeah. The whole ecosystem is being built in that way, that people are not just thinking in their traditional mindset जो मेरे जनरेशन में था कि यार डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है या फिर फैमिली बिजनेस ही करना है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। अभी इतनी चीज़ें चीज़ें हैं, पीपल आर गॉट सो मच ऑफ एक्सपोजर, स्टार्टअप कल्चर इतना स्ट्रांग है, पीपल वांट टू टेक रिस्क, पीपल वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, पीपल वांट टू इनोवेट। तो सर, पूरी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें से आपको क्या लगता है कि इस फैक्टर पे अभी तक कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ या कि बहुत लैग कर रही है चीज? यार मुझे लगता है कि वैसे लैग कुछ नहीं है, बट ऑफ कोर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैन, देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इंक्रीज जैसे हमने दैट। बात करी लाइसेंसिंग एंड ऑल। हाँ, जैसे लाइसेंसिंग, जैसे कंप्लायंसेस, हाँ। दे कैन बी ईज्ड। जैसे और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है व्हिच आई वुड वांट टू से, जो ये हमने खुद भी फेस किया, कि बहुत सारी कंप्लायंसेस ऐसी हैं इस कंट्री में जो उनकी अवेयरनेस नहीं है, जो आपको कोई बताता नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपको बहुत सारे होते हैं आपके, जो अगर आप जैसे प्राइवेट कंपनी अगर आपकी है तो उसमें आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस है जो हर साल फाइल करने पड़ते हैं। अच्छा। राइट, जो अनटिल एंड अनलेस आप एक प्रॉपर सीए आपका कंसल्टिंग नहीं कर रहा है तो आपको पता ही नहीं होगा। राइट, अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर आप बोलो आज आप इस एज में कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ गया। तो अगर आपको एक सीए को नहीं आप हायर करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी कंप्लायंसेस है, कितने फॉर्म्स फिल करने हैं, कितना कुछ करना है, और फिर बाद में आपको पेनल्टीज आ जाएंगी कि अरे ये तो आपने फॉर्म कंप्लायंसेस की ही नहीं। और आप जाके वेबसाइट पे भी ढूंढोगे तो शायद आपको नहीं मिलेंगी कि ये सारी कंप्लायंसेस करनी थी। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कंप्लायंसेस होंगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कौन सी वेबसाइट पे क्या है। तो आप So there is no one stop portal. बता पाएगा। हाँ, कोई प्रोफेशनली बता पाएगा, which I don't think it should be like that.
अब इतना इतना रिलायंस क्यों होना चाहिए हमें सीएस ही बता पाए? हाँ। दैट शुड बी आउट इन द ओपन कि आपको एक कंपनी करनी है, ये कंप्लायंसेस है। एक पोर्टल हाँ, ठीक है। बेसिकली होना चाहिए कि आप अपने स्पेसिफिकेशन डालो, सारे कंप्लायंस उस पे आ जाए, आ जाए भाई, ये आपको करना है, तो आई अभी नो नहीं है कि ऐसा मुझे कुछ। बस ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सबका अलग अलग ढूंढना पड़ेगा आपको, कुछ कोई वेबसाइट कुछ बता रही है, कोई वेबसाइट कुछ बता रही होगी। तो इसके लिए आपको हायर करने हाँ। पड़ते होंगे लाइक वही मैं बोल रहा हूँ, एक सीए आपको होना ही चाहिए हमेशा, या सीएस होना ही चाहिए एक आपका। तो तो मुझे लगता है कि वो कंप्लायंसेस और वो अवेयरनेस, ये सब थोड़ा करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, हाँ कि तो आपको government- कंप्लायंसेस कम हो जाए, आपके हाँ, आपको लाइसेंसेस मिलना इजी हो जाए, हाँ, करप्शन कम हो जाए, आपको कभी किसी को जाके फालतू में पैसे नहीं खिलाने पड़े। ये सब चीजें जब कंट्रोल होती हैं, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती है, एग्जैक्टली। तो आप उतना जल्दी इजी कर बिजनेस कर पाओगे। गवर्नमेंट फीडबैक्स वगैरह लेती है लाइक बिजनेसमैन से? कौन लेता है यार? नहीं लेता। सजेशंस वगैरह कौन anything? लेता है? जैसे आप बता रहे हो तो इस पे कौन लेगा? कोई नहीं लेता है तो इसकी भी कमी है यार। कमी तो ऐसा नहीं है, देखो देर आर इंडस्ट्री वाइड एसोसिएशंस, राइट? जैसे CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो उनकी बिजनेसमैन की भी अपनी अपनी एक एसोसिएशंस होती हैं, बॉडीज होती हैं जो बिजनेसमैन की बात गवर्नमेंट तक रखती हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इंश्योर कि गवर्नमेंट नोज व्हाट challenges are being faced by businessmen, what all policy changes that they need to do to make business easier for them. तो ये सब चीजें हो रही हैं इंडस्ट्री में। अब डायरेक्टली एक बिजनेसमैन से जाकर तो गवर्नमेंट नहीं लेगी ना। ऑफ कोर्स लाइक आप जो जुड़े हुए जिन सोसाइटीज एंड ऑल से, सॉरी, जो ग्रुप्स एंड ऑल इनसे आप कनेक्टेड हो? हाँ, कुछ ग्रुप से हम कनेक्टेड रहते हैं। कौन कौन से जैसे मेजरली? मतलब जैसे CII है, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी, बट आई नो पीपल इन सो इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्टली सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत टाइम से खटक रहा था, मैं पूछना चाह रहा था। सो आपने बताया था आप एक शेफ लेकर आए थे पंजाब से, क्या वो अभी भी आपके साथ है? नहीं, इट्स बीन 7 years, अभी नहीं है हमारे साथ वो। अच्छा, हाँ। तो वो क्या नाम है, कुछ टाइम तक रहे होंगे? कुछ टाइम तक रहे थे, उसके बाद नहीं थे। ओके, वन ऑल्सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि जो आपके को फाउंडर हैं वो आपके रिलेशन में भी आपके हैं? ब्रदर इन लॉ, या ही इज एन ब्रदर इन लॉ। तो सर इस बारे में आप क्या बोलना, लाइक मैंने कई लोग को सुना है कि वी शुड कीप द रिलेशन एंड वर्क सेपरेट, है ना? तो इसके बारे में क्या है? यार ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अगर बिजनेस करना है ना किसी के साथ, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो उस पर। ट्रस्ट फैक्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सी having a co-founder, can be very good or very bad for your business, right? अगर आपका अकेले करना भी it's tough, right? Because when you have 1 or 2 co-founders, you get a lot of different perspective. नहीं तो ऐसे आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। Nobody is giving you a counter opinion, right? बट वो आपको थोड़ा पहले जानते हैं तो वो आपको जानते हैं, तो हाँ, तो एक तरह से अभी हम लोगों में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कोई डिसीजन लेना है, मेजर डिसीजन कंपनी में, बिकॉज ही विल ब्रिंग हिज ओन पर्सपेक्टिव, आई विल ब्रिंग माई ओन, एंड देन वी सिट, वी डिस्कस। फिर हमें लगता है कि यार दोनों का आर्ग्यूमेंट है, बट इवेंचुअली व्हाट इज हेल्पिंग द कंपनी मोर, राइट? दे शुड नॉट बी ईगो कि यार कि मेरा आइडिया, मेरा ओपिनियन है, वही बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि एज अ कंपनी व्हाट इज really beneficial, and you go with that idea. I'll have ideas, he'll have ideas, which idea is the best for your company. So अगर आपका वो इंटरेस्ट अलाइंड है, तो आपको ये ट्रस्ट है कि यार देख, वो he is not talking from his ego point of view, he is talking from company's point of view, what is better for the company. जब वो एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है ना, तब co-founder होना बहुत जरूरी है, बहुत it really works. So मुझे लगता है किसी चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे जो भी है, लेकिन अगर ट्रस्ट है आपको तो ही आपको करना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के स्टार्टअप्स फेल होते हुए जस्ट बिकॉज द फाउंडर्स कुडंट गो अलोंग वेल। बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा ट्रैक्शन था शुरू में, लेकिन वो आपस में जेल नहीं हो पाया, आपस में ट्रस्ट इश्यूज हो गए, तो वो स्टार्टअप बंद हो गया। तो ऐसा मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि को-फाउंडर्स में आपस में सेम माइंडसेट ना भी हो, लेकिन ट्रस्टवर्दी हो तो चलेगा। सेम माइंडसेट होंगे, बट हां, दैट्स फाइन, एट द एंड कंपनी के लिए जो बेस्ट होगा वो करना चाहिए बस। आई थिंक सर। सर रैप करते हुए एक चीज जो आप इंडिया के यूथ को बोलना चाहो? मैं यही बोलना चाहूँगा जो मैंने पहले भी कॉन्वर्सेशन में बोला था, दैट इफ यू वांट टू गो अहेड एंड डू योर ओन स्टार्टअप, don't wait for the right time. Just go ahead and do it.
डू योर डिलीजेंस, डू योर रिसर्च, बट डोंट वेट कि एक टाइम आएगा तब मैं करूंगा, ऐसा जब होता वो नहीं हो जाएगा है। तब जब मेरा ये हो हो जाएगा जाता है, वो वो ऐसा नहीं होता है। When- गो अहेड एंड डू जब इट। आइडिया आ गया तब हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि जब आप करते हो ना, देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपको, अब जितनी भी रिसर्च कर लो तो भी कुछ चीजें ऐसी आ जाएंगी आपको कि तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बट जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, अगर आप पैशनेट हो कि मुझे करना है बिजनेस, आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। लॉन्ग रन में you'll just यू विल फाइंड succeed. हेल्प समवेयर। हाँ हमारे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें कुछ आइडिया नहीं था। आई हैव नेवर डन फूड बिजनेस बिफोर, बट वी समहाउ व्हेन वन डोर क्लोजेस, अनदर डोर ओपन्स, तो हो जाता है। वहाँ जाते जाते सब इंटेंट अच्छा होगा, मेहनत करोगे, सब कुछ हो तो जाएगा। दरवाजे खुलते चले जाते हैं। Okay, it was very nice talking to you, sir. My Thank you so pleasure. It was much. my pleasure. Thank you, Dev.